اشرف، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بیداری سب کے لیے۔ پروگرام بیداری سب کے لیے میں آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم بات کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، حکمران کیسا ہونا چاہیے، اس کے اوصاف کیا ہونے چاہیے۔ آج ہم عام آدمی سے یہ جاننے کے لیے مون مارکیٹ لاہور میں موجود ہیں۔ ناظرین، اگر بات کی جائے نبی کریم حضرت محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کیا جائے تو ایک بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ تمام انسانوں کے لیے ایک ایسی مثال ہے کہ جس طرح سورج کی روشنی کی کرنیں ہر ایک ذرے کو مستفید کرتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اسی طرح ناظرین ہر ایک انسان کو مستفید کرتی ہے۔ اسی طرح اگر دوم خلیفہ کی بات کی جائے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ناظرین ایسے حکمران گزرے ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو زندگی میں امپلیمنٹ کر کے دکھایا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے گوہرے نایاب اٹھائے اور 22 لاکھ مربع میل کی حکومت قائم کی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی سادگی کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی۔ حکمران ہو تو ایسا، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہی ایک ایسی شخصیت تھی جو راتوں کو گشت کیا کرتے کہ آیا کہ میری وجہ سے کوئی میرے دور اقتدار میں کوئی رات کو بھوکا اور بھوک سے بلبلاتے بچے اپنی ماں کو آواز دے کر یوں ہی نیند کے آغوش میں نہ سو جائیں، تو اگر میری وجہ سے میرے دور اقتدار میں کوئی بچہ بلبلاتا ہوا یوں ہی نیند کے آغوش میں سو گیا تو میں کل کو رب کو کیا جواب دوں گا؟ کیا آج بھی ملک پاکستان میں ایسے بے باک، ایسے بہادر، ایسے حکمران جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات پہ عمل کرنے والے موجود ہیں؟ ناظرین، میرے ملک پاکستان میں معاشی بحران کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ملک پاکستان اس وقت معاشی طور پر بدحالی کا شکار ہے۔ یہاں پہ عوام بے روزگاری سے، مہنگائی سے، بجلی کی بڑھتی ہوئی لوڈ شیڈنگ سے فٹ پاتھ پہ زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ ناظرین، آج ملک پاکستان کو بھی فاروق اعظم کی تعلیمات پہ عمل کرنے والا لیڈر چاہیے، یا ایسے ہی حکمران ملک پاکستان کو چاہیے کہ جو آئے دن عوام کے جذبات کے ساتھ کھیلتے رہیں۔ یہی جاننے کے لیے اس وقت میں مون مارکیٹ لاہور میں موجود ہوں۔ ہم عام آدمی سے جاننا چاہیں گے کہ حکمران کیسا ہونا چاہیے اور اس کے اندر خوبیاں کیسی ہونی چاہیے۔ اسے جاننے کے لیے اس وقت میں مون مارکیٹ لاہور میں موجود ہوں۔ السلام علیکم بھائی جان۔ وعلیکم السلام۔ کیا گڈ نیم ہے بھائی جان؟ محمد شہزاد، محمد شہزاد صاحب، آپ کہاں سے ہیں؟ ٹاؤن شپ سے۔ ٹاؤن شپ سے۔ یہاں کس سلسلے میں حاضر ہوئے؟ یہاں پر ہم جو ہے نا وہ سامان دیتے ہیں، یہاں پر کراکری کی دکانوں پر۔ اچھا، سامان کی خرید و فروخت کے لیے۔ اچھا حضرت صاحب، آپ سے میرا سوال ہے کہ حکمران کیسا ہونا چاہیے اور اس کے اندر کیسے اوصاف ہونے چاہیے؟ آپ اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو اور پاکستان کی 22 کروڑ عوام کے ساتھ ساتھ پوری دنیا اور پورے عالم اسلام کو کیا میسیج دینا چاہیں؟ جی، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسا حکمران ویسی عوام، جیسے تو جو ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حکمران اچھا ہونا چاہیے، انصاف پسند ہونا چاہیے۔ اور عمران خان بڑا اچھا حکمران ہے، بڑا اچھا
हुकूमत चला रहे हैं जैसे हालात जा रहे हैं। इमरान खान के बारे में जैसा कि मैंने कल भी इशरा बाज़ार में प्रोग्राम किया, वहाँ पे भी मुझे मालूम हुआ है कि लोगों ने कहा कि बुरी तरह फ्लॉप हो गया है। अवाम जो है इस वक्त जो है बदहाली का शिकार है। अवाम इस वक्त बुरी तरह उसे नाला है, नाराज़ है। अवाम इस वक्त बुरी तरह जो है दुख और गम में है। तो आप कहते हैं कि इमरान खान साहब एक अच्छा हुक्मरान है, तो कैसे अच्छा हुक्मरान है आपकी नज़र में? कहने का मकसद ये है कि वो अवाम खुद सही नहीं है। अवाम खुद 5 वक्त की नमाज़ पढ़े। यहूदी लोग कहते हैं जितने नमाजी तुम्हारे जुमे की नमाज में नज़र आते हैं ना, इतने नमाजी तुम्हारे फजर की नमाज में नज़र आना शुरू हो गए ना, तो तुम लोग ऊपर हो गए, हम लोग नीचे हो गए। आज ये यहूद नसारा अमेरिका जो है ना, ये फैसला करता है कि हमारा कौन सा हुक्मरान होना चाहिए। तो जो है बस आज अवाम ही अपने आप को सही कर ले, 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी शुरू कर दे, खुद ही देख ले कि जुमे में कितने नमाजी होते हैं और फजर में कितने कम होते हैं। आपका कहना है कि जैसी राय उसी तरह का हुक्मरान होगा? हाँ, वैसे ही होगा हुक्मरान। मेहरबानी, शुक्रिया। अच्छा भाईजान, मेरा आपसे सवाल है, मेरा आपसे सवाल ये है कि हुक्मरान कैसा होना चाहिए? यार हुक्मरान तो देखो जैसा भी है, हम तो कहते हैं कि हमें अच्छा एक लीडर आए, ठीक है, लेकिन हमें आज तक कोई अच्छा लीडर सामने यानी नहीं कि आपको हुक्मरान से कोई गर्ज नहीं? हुक्मरान से गर्ज नहीं, हमें महंगाई से गर्ज है। तो फिर हुक्मरान नहीं होगा तो मुल्क कैसे चलेगा? तो हुक्मरान तो कोई अच्छा आए ना हमारे पास। हमारे पास कैसा अच्छा है? इमरान खान आए या मियां नवाज शरीफ साहब आए, कोई भी आ जाए, अच्छा। लेकिन अवाम के बारे में सोचिए, अवाम के बारे में कोई भी नहीं सोचता। यानी कि आप उनके करैक्टर को नहीं देखना चाहते? हम करैक्टर को नहीं देखते, हम कहते हैं हमारे अवाम के बारे में कुछ सोचे, मुल्क के बारे में कुछ सोचे। अब जैसे बाहर के लोग हैं, वहाँ देखा जाए तो हर जो प्राइम मिनिस्टर है या कोई भी वजीर आजम है, कोई भी सदर है, हाँ प्राइम जी, मिनिस्टर है, जो भी, वो अपने मुल्क के बारे में सोचते हैं। ओके, हमारे यहाँ पे मुल्क के बारे में कोई नहीं सोचता। ओके। हर बंदा कहता है चलो यार अपनी यहाँ पे ख़त्म करो, अपनी जेब में देखो। तो हुक्मरान में क्या खूबियाँ होनी चाहिए? हुक्मरान में ये होना चाहिए कि आजिज़ी होनी चाहिए, Very good. तकब्बुर नहीं होना चाहिए उसमें। Very good. ठीक है, और हुक्मरान को चाहिए कि यहाँ पे कुछ भी होना पहले अवाम का सोचे, गरीबों का सोचे, गरीब तबके का सोचे। अच्छा पापा जी, सवाल आपसे ये है कि हुक्मरान कैसा होना चाहिए और उसके अंदर औसाफ कैसे होने चाहिए? क्या जैसे मोहम्मद अली जिन्ना के बाद वेरी गुड। अब जो हुक्मरान मिला ना, वो इमरान खान। अच्छा, आप समझते हैं कि दूसरे कायद इमरान खान? हाँ जी। कैसे? भाईजान, इंसान वो होता है जो किसी की आंख में आंख डाल के देखे। वेरी गुड। हाँ जी, वो उसको झुकने की आदत नहीं है। ओके, और पाकिस्तान की इज्जत नफ्स जो किसी मोड़ पे भी वो मजरू नहीं होने देगा। ओके, और आवाम की दिलाजारी भी नहीं हो उदों ते उदों इस तो भी बदतर हालात से, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि साडी आवाम दे विच सबर है ही नहीं। ओके, बेटा देखना चाहिए है कि पहले तो अपने घर को सही करो, ओके, फिर उस तो बाद बाहर वेखो। तुसी ये कहते हो कि महंगाई बड़ी है। यानी कि आप इमरान खान जैसे हुक्मरान से मुतफिक हैं? हाँ जी, उनमें ये औसाफ मौजूद हैं कि जो मुल्क चला सकते हैं? और इंशाअल्लाह ताला तुसी अगले 5 साल देखोगे ओके, कि यह जिहड़ा इमरान खान है, इन्हें किथे किथे किन्नू किन्नू नत्थ पाई है। वेरी गुड। कितनी हुकूमतें देखी है ना, ये दावे करते चले आ रहे हैं गरीबों के साथ हैं, गरीबों के साथ कोई भी नहीं रहता। अच्छा, और उसके बाद कितना धोखा फरेब ये हुकूमतें करते चली आ रही है ना, वो किसी की हुकूमत में नहीं हुआ। अभी हमें कैसे हुक्मरान की मेरी जरूरत? बात सुने, मेरी बात सुने। हाँ जी, आपको हुक्मरान पाकिस्तान को एक मिला है, अयूब खान। अच्छा, उसके अलावा कितने हैं? और अयूब खान ने बोला था ये खोटे सिक्के हैं, ये कितने हैं बेईमान, ये खोटे सिक्के हैं। उसके यही किरदारों ने ये कहा ये बेईमान है। उसके बाद 2 बच्चे मरे थे मार रोड पे, उसने हुकूमत छोड़ दी थी। वेरी गुड। उसने हुकूमत छोड़ दी थी। इनकी हुकूमत में लाखों मर रहे हैं। और दुकानदार जो असल में दुकानदार मजदूरी करते थे, वो थोड़ों पे रोडों पे आ गए हैं मजदूरी करने के लिए, और उनका वक्त पास नहीं हो रहा। अच्छा पापा जी, अयूब खान के बारे में बड़ी तारीफें सुनी हैं, अयूब खान के बारे में बड़ी तारीफें सुनी हैं, तो आप कोई 1-2 खूबी अयूब खान की बताइए। खूबी है, हाँ जी, ये कितने रोड लाहौर के बने हुए हैं पहले वाले, हाँ जी। वो 4-4 रोड उसने बनाए हैं, अयूब खान। फुटपाथ उसने बनाए हैं। उसके बाद हाँ जी। कितना भी काम किया, डैम बनाया, मंगला डैम बनाया। अच्छा, आपसे सवाल ये है जी, जी। कि इमरान खान साहब क्या ऐसा हुक्मरान है कि जो राया चाहती है? मैं कहना छड्डो साई की गल करनी है, कोई चंगे बंदे नाम लईदा होंदा है, एवं कोई मलूसा नाम साढ़े सामने लईदा होंदा। अच्छा,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਇਹਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਇਹਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਘਿਓ ਦਾ ਰੇਟ, ਚੀਨੀ ਦਾ ਰੇਟ, ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਰੇਟ, ਉਹ ਗਰਮੀ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਵੀ ਉੱਤੇ ਚਲੀ ਗਈ। इमरान खान साहब ने ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੌਰ ਜਿੰਨੀ ਇੰਨੀ गरमी होगी। टेम्परेचर का ताल्लुक जो है, गर्मी का ताल्लुक जो है, वो तो कुदरत का वरदान है कि इमरान खान की तरफ ये भाई ने हर चीज तो ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। कि आपने कहा गर्मी भी बढ़ा दी। गर्मी भी नहीं ਵਧਾਤੀ भाई ਅਸੀਂ मान अच्छा, आपसे दूसरा सवाल ये है कि फिर हुक्मरान कैसा होना चाहिए? नवाज शरीफ जैसा होना चाहिए, बस सीधी साफ बात। अच्छा, नवाज शरीफ की कुछ 4 खूबी हैं। 4 खूबी हैं सर जी, सीधी साफ बात है, उसने महंगाई काफ़ी कम की, ठीक है। इसके अलावा उसने बच्चों को जो सीधे साहब स्टूडेंट को उसने पढ़ाई को जो सीधे साहब है काफ़ी मोटिवेशन किया, ठीक है। अच्छा। उसने लैपटॉप दिया शहबाज शरीफ ने, सबको पता है इसने क्या दिया। इसने बच्चों को घर बैठा दिया, बच्चे यहाँ पे खुदकुशियाँ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ अच्छा, कर रहे हैं। नवाज शरीफ के बारे में जैसे आपने ओपिनियन सुनी है, एक ओपिनियन में कोई है चोर है, डाकू है, लुटेरा है, तो फिर ये क्या सच है? ये बात सुने, उसका काम किया ना, चले माना जो भी किया उसने किया चोरी, ठीक है, उसका काम किया नजर आ रहा है, ठीक है। सड़कें बनी है, मेट्रो बनी है, ऑरेंज ट्रेन बनी है, लोग दुआई देते हैं उसको, लोग दुआई देते हैं, जाके खुश होते हैं। आप किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं? सीधी साहब बात है, शेर शेर। आप आइंदा नेक्स्ट जो इलेक्शन होंगे 2023 में आप किसको वोट देंगे? शेर को देंगे इंशाल्लाह। मैं कहने इमरान खान सामने नहीं होता, दिगर पास से नवाज शरीफ तो इस वक्त मुल्क से बाहर है। तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह मरियम नवाज जिंदाबाद। अच्छा, मरियम नवाज को आप देख रहे हैं वजीर आजम नेक्स्ट? इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। शुक्रिया भाईजान, मेहरबानी, थैंक यू, अच्छा लगा। हुक्मरान कैसा होना चाहिए, उसके अंदर उसाफ कैसे होने चाहिए? ये जो अपने मौजूदा वज़ीर आज़म साहब हैं बिल्कुल ठीक है, अच्छी स्टेट पे जा रहे हैं ओके, जी। बिरूने ममालिक आप से इत्तफाक करते हैं इमरान खान साहब से? वो बिरूने ममालिक से डट के साथ चल रहे हैं, उनको कदम के साथ कदम लेके चल रहे हैं। ओके। और जहाँ वो इनकार वाली बात होती है, जहाँ मुल्की मफाद होता है, वहाँ बात करते हैं, उनको डट के जवाब देते अच्छा, हैं। आउट ऑफ कंट्री में एक ओपिनियन जो चल रही है वो तो इमरान खान साहब के बारे में, यानी कि राय आमा की जो राय है वो बहुत अच्छी आ रही है। जो इंटीरियर मैटर्स हैं, जो अंदर मुल्क के अंदर खदशात लाहक हैं, उनके बारे में इमरान खान साहब को आप किस हद तक, आपकी क्या राय है, किस हद तक वो कामयाब हुए हैं? क्या आइंदा 2023 में भी आप उसे वज़ीर आज़म देखना चाहेंगे? क्या आप उसे वोट दोबारा देना चाहेंगे? क्या आपकी राय है? जी मेरी राय बिल्कुल इस बात पे इत्तेफाक करती है कि जैसे वो मुल्क के इंटीरियर पर चल रहे हैं, जो आम तबका है उनको इस बात की समझ नहीं आ रही। जैसे अमेरिका के साथ वो शाना बशाना बात कर रहा है, जैसा रूस के साथ, रशिया के साथ बात कर रहा है, ठीक है। इनको सिर्फ अपने हालात के मुताल्लिक ही पता है कि यार सब्ज़ी महंगी हो गई है, पेट्रोल उधर चला गया है, ठीक है, ये हो गया वो हो गया, सूरज नहीं निकल रहा, रात पड़ रही है, ठीक है। उसके इनको बस यही चाहते हैं कि ये जो हमारे साथ है ना वो ठीक होना चाहिए, किसी और के साथ का हम नहीं जानते। तो अतीक साहब, आपसे सवाल ये है कि हुक्मरान कैसा होना चाहिए? क्या उसके अंदर उसाफ जो होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए? खूबियाँ जो है वो कैसे? अगर हम मुसलमान हैं सब तो नबियों की कॉपी होना चाहिए। वाह, क्या बात की है आपने। जो उमर फारूक, वेरी गुड। ऐसे लोग होने चाहिए। अच्छा, उमर फारूक रजी अल्लाह ताला, अल्लाह इक़्तिदार है, अल्लाह का जो मालिक है ना, जो मैंने पढ़ा है वो अल्लाह ताला है। वेरी गुड, और अल्लाह ताला जिसको ये सादत देता है ओके। उसको अमल ये करना चाहिए कि नबियों की तरह जो है ना काम करे। अच्छा, उमर फारूक 22 लाख मुरब्बा मील के मालिक थे, उनमें सादगी थी। तो क्या आज के हुक्मरानों में ये जो आप अभी आपने बात की है कि उमर फारूक जैसा हुक्मरान होना चाहिए, तो मुल्क पाकिस्तान को दूसरे फ़ारूक आज़म की ज़रूरत है ताकि मुल्क पाकिस्तान के हालात जो है बेहतर हो सके? इसके बारे में क्या मौजूदा हुक्मरान हज़रत उमर फारूक की तालीमात पे अमल कर रहा है? मेरे ख्याल से जस्ट इमरान खान को निकाल के बाकी सब 2 नंबर हैं, वो कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, आसिफ साहब, हुक्मरान कैसा होना चाहिए? हुक्मरान जनाब कोई अच्छा होना चाहिए जो आके हमारे हालात बदल दे, जो ठीक है, जो आए और वाकई अवाम के हालात बदले। अच्छा, यानी कि जो अवाम के हालात बदल दे उस तरह का हुक्मरान होना चाहिए। अच्छा, उसमें औसाफ क्या होने चाहिए, खूबियाँ क्या होनी चाहिए हुक्मरान? सर हमारे अंदर कोई खूबियाँ नहीं, हमने क्या खूबियाँ ढूंढ रही हैं? जिस तरह के हम हैं वैसे हुक्मरान आएगा ना, कोई हम में से ही आएगा ना। यानी कि पाकिस्तान की अवाम में कोई खूबियाँ नहीं है। 3 जमातें हैं, तीनों को हमने आजमा ली है। अच्छा। अब हमें को इसके अपोजिट बनना चाहिए जो इनसे हट गए हो। अच्छा, 3 जमातें कौन कौन सी? तहरीक इंसाफ, नून लीग, पीपल पार्टी, तीनों को हमने आजमा लिया। अच्छा। काबली को भी आजमा लिया। यानी कि अभी आप चाहते हैं कोई नया बंदा आए? हम चाहते हैं कोई नया बंदा है अच्छा, नए बंदे से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन? तो आए और वाकई आन के कहे कि हम पाकिस्तान को बदलने के लिए आए हैं, इनके हालात बदलने के लिए, खाने के लिए नहीं आए। वेरी गुड।
हाँ, पाकिस्तान को हमने पैसा अपनी जेबों में डाल के भागना नहीं है, इधर इसके इधर लगाना है, लगाने के लिए आए हैं हम। ऐसा बंदे हमें चाहिए। तो शुक्रिया भाईजान। जो हुक्मरान ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर कोई दर्द हो, जिसको ये पता हो कि मेरी आवाम पिस रही है, खुद बैठता है, ऐलान करता है। मौजूदा जो हुक्मरान है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब, इचरे में कल पूरी आवाम ने मुकम्मल तौर पर इमरान खान साहब का बाइकआउट कर दिया है। आज मून मार्केट में मैंने कुछ लोगों को ये कहते हुए सुना है कि इमरान खान साहब से हम मुकम्मल तौर पर सहमत हैं। तो क्या आप इमरान खान साहब से सहमत हैं या 2023 में इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म देखना चाहेंगे या किसको वज़ीर आज़म देखना चाहेंगे? सर 2023 में अगर ये वज़ीर आज़म आता है ना, तो मैं दावे से कहता हूँ कि क़यामत होगी, क़यामत से पहले वो क़यामत होगी, क्योंकि अवाम आगे मर चुकी है। आप आगे से लोगों को पैनिक कर रहे हैं 2023 में भी। ये लोगों को अभी आपने बात की तो वो लोग सहमत होंगे। वो मैंने बात नहीं की कि 2023 में, उनकी कबीना का कहना है, अभी माहरीन का कहना है कि वो वज़ीर आज़म 2023 में भी इमरान खान साहब को देख रहे हैं। उन इमरान खान साहब के कुछ लगल बगड़ इधर घूम रहे हैं, 3-4 लोग हैं उनके जो सिर्फ उनके हमायती हैं, और वो भी उनका जो है ना मफादात की जाए। आप किसके हमायती हैं? हम अल्हम्दुलिल्लाह कल भी नून लीग के थे, आज भी नून लीग के हैं। ये क्या बात है, लाहौर के सारे बट नून लीग के हैं? हुकूमती बट्टों की है। अच्छा, हुकूमती बटों की है। अभी भी है, अगर हम इक़्तिदार में नहीं भी हैं, हम लोगों के दर्द देख रहे हैं। अच्छा। हम मालूम, मैं इस मून मार्केट का डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हूँ। अच्छा, आप डिप्टी सेक्रेटरी हैं इस मून सेक्रेटरी मार्केट? हूँ मैं। अपने ये मेरे दुकानदार भाई खड़े हुए हैं, मैं इनके साथ शाना बिशाना खड़ा हूँ। बेशक हम इलेक्टेड है कि नहीं, हमारी दूसरी यूनियन ने स्टे लिया हुआ हम पे, हम फिर भी उनके लोगों के दर्द देख रहे हैं। अच्छा, आप मार्केट के हवाले से लोग आपसे जो है मुतफिक है? अल्हम्दुलिल्लाह हम 2-3-4 दिन में इंशाल्लाह इसी मार्केट में हलफ उठाएंगे, और अपने ये थ्रू आउट जितने ये हमारे अड्डे वाले हैं, दुकानदार हैं, हम इनके साथ शाना बिशाना खड़े हुए हैं, और इनके दर्द में हम शामिल हैं। हम इनको अकेला नहीं छोड़ेंगे। कोई मसला इधर दरपेश आता है तो आप बराबर में खड़े हम होते हैं? सबसे आगे खड़े होते हैं और पहली सफ में होते हैं कि इन हमारे दुकानदारों को किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। 16 माह से ये लॉकडाउन है, और ये मैं ऑन ईयर कह रहा हूँ, ओपन कह रहा हूँ कि शायद, बट इन दुकानदारों के लिए सबसे आगे खड़ा हुआ है, चाहे वो महकमा पुलिस है, चाहे वो महकमा कोई वो उसका है, मतलब चालान करने वाला है, कोई भी है, हम आगे खड़े हुए हैं। जितना रिलीफ दबा सके हमने इनको दबाया। अच्छा, हुक्मरान कैसा होना चाहिए? आपकी ओपिनियन क्या है, आपकी राय क्या है, आपका आइडियल क्या है कि हुक्मरान कैसा हो, उसके अंदर क्या क्या खूबियाँ हों, क्या औसाफ हों, वो कैसा होना चाहिए? सर हुक्मरान जो है वो बस ईमानदार होना चाहिए, पहली क्वालिटी तो यही है। एज अ पर्सन भी वैसे हर बंदा ईमानदार होना चाहिए। ये प्री क्वालिफिकेशन है, वैसे हुक्मरान होने के लिए ज़रूरी नहीं है, हर बंदे को ईमानदार होना चाहिए। इमरान खान साहब को आप कैसा हुक्मरान समझते हैं? इमरान खान साहब बाकी कुछ होना हो, ईमानदार तो हैं, ठीक है। तो बाकी सारे चैलेंजेस जो भी है अभी हम फेस कर रहे हैं वो पिछले 40 साल के हैं मिनिमम, मोर और लेस। अभी आप सहमत हैं? सहमत हूँ जी, बिल्कुल ठीक जा रहा है। 2 years आप देखना चाहेंगे? बिल्कुल देखना चाहेंगे जी। किसी ने आज तक पहले ये बात अमेरिका को एब्सोल्युटली नोट कहा था पहले, ठीक है। हॉलोकॉस्ट की बात इंटरनेशनल फोरम पे, नामूस रिसालत की बात किसी ने ऐसे की थी, तो एटलीस्ट ये कर रहे हैं। उसके बाद जो आपका सॉफ्ट इमेज के हवाले से इन्होंने कहा है कि फाश फिल्में नहीं बनेंगी, तो वैसे तो लोग कहते हैं यहूदी एजेंट है, काम तो वो सारे इस्लामिक कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, आप इसे वज़ीर आज़म नेक्स्ट देखना चाहिए? जो मैं पर्सनल ओपिनियन में तो देखना चाहूँगा। थैंक यू सर। इमरान खान साहब जो मौजूदा हुक्मरान है, आप सहमत हैं इमरान खान साहब से? वोट तो नहीं दिया था, लेकिन फ़िलहाल सहमत नहीं है। अच्छा, कैसा हुक्मरान होना चाहिए आपके नज़रिए में? जो गरीबों को देखे और महंगाई को कंट्रोल करे। आपके सामने पेट्रोल की कीमत वगैरह कितनी बढ़ गई। खूबियाँ क्या होनी चाहिए? खूबियाँ ये कि नेक बंदा हो, फाशी ना फैले मुल्क में। ओके। तो इस्लामिक जिस तरह रूल्स चल रहे हैं उस तरह के चले। थैंक यू। फ्याज साहब क्या हाल चल? अल्लाह का करम, शुक्र अल्लाह का। शेख साहब सेहत कैसी? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से बिलोंग करते हैं शेख साहब? हम लाहौर से ही हैं जी। लाहौर से। यहाँ पे किस सिलसिले में? यहाँ पे मैं मून मार्केट नामा इकबाल टाउन का चेयरमैन हूँ जनाब। वेरी गुड। यहाँ पे मून मार्केट की? जी जी। अच्छा, मून मार्केट के हवाले से आपकी क्या सरगर्मी है? हमारी सरगर्मी आजकल तो बिल्कुल कोई सरगर्मी नहीं, आजकल तो खामोशी है। अच्छा, आपके लिए मेरे पास एक सवाल है। जी बताइए। बहुत खूबसूरत सवाल है, ज़रा सोच समझ के जवाब दीजिएगा। अच्छा, हुक्मरान कैसा होना चाहिए? हुक्मरान ऐसा होना चाहिए जो गरीब का एहसास करे, ओके जो मुल्क की मामलात में महारत रखता हो, ओके जो मुल्क की मैशत को सहारा दे सकता हो, ओके। बस ऐसा हुक्मरान चाहिए। इसमें क्या क्या खूबी होनी चाहिए? ये जो 3 खूबियाँ मैंने आपको बताई हैं, ये सबसे बड़ी खूबियाँ हैं। ओके। आप समझते हैं मौजूदा हुक्मरान जो
इमरान खान साहब हैं, वो मुल्क में वो तब्दीली ला सकते हैं जिसका वादा किया था आवाम से? जी, जो वादा उन्होंने किया था, मैं तो वाज़े अल्फाज में कहता हूँ कि झूठा वादा था। कोई तब्दीली नहीं आ सकती। जो 3 साल में नहीं आई वो अब आगे कहाँ से आएगी? अच्छा, मून का तब्दीली नहीं आ सकती। मार्केट का भी मैंने विजिट किया है। अभी आवाम कहती है कि हम 2 साल देखना चाहेंगे, तो आप क्या 2 साल देखना चाहेंगे इमरान खान साहब को कि वो तब्दीली आ जाए? 3 सालों में जो कारोबार का बेड़ा गर्क हो गया है, लोग दुकानें छोड़ के जा रहे हैं, बंद कर के जा रहे हैं, ठीक है ना, उनसे किराए नहीं निकल रहे हैं। अगले 2 साल में वो खुदकुशियाँ करेंगे। आप किसको अच्छा वज़ीर आज़म समझते हैं नेक्स्ट 5 ईयर्स में? मैंने तो आपको बताया कि वज़ीर आज़म वो होना चाहिए जिसमें ही ये खूबियाँ हों। तो नेक्स्ट 5 ईयर्स में आप किसको देख रहे हैं वज़ीर आज़म मुल्क पाकिस्तान? देखें जी, वज़ीर आज़म इस वक्त सिर्फ इनके पास एक ही है और उसका नाम है शहबाज शरीफ। अच्छा, शहबाज शरीफ के ऊपर तो इतने केसेस उन्होंने किए हुए हैं। सर, वो केसेस जो किए हुए हैं उसका करें, इंक्वायरी करें, देखें। अभी तक तो कुछ साबित नहीं कर सके। साबित करें, देखें, बताएं, उनके ऊपर जो बोला जाता है चोर, डाकू, लुटेरा, इन अल्फाज के बारे में आप क्या कहना चाहिए? चोर जिसको बोला जाता है उसकी कुछ चोरी तो निकालें बाहर। वो चोरी तो नहीं चाहिए कि भाई ये चोरी की है। जब यही नहीं पता कि क्या चोरी हुआ है तो चोर किसको कैसे कह सकते हैं? जब तक ये साबित नहीं होगा कि इसने ये मोबाइल है, ये मोबाइल चोरी की, कहते हैं ना मोबाइल चोरी किया। मरियम नवाज शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनने देगी? जी, बनने देगी। उनमें आपस में कोई इख्तलाफ नहीं है, किसी किस्म का इख्तलाफ नहीं है। मरियम नवाज तो खुद को वज़ीर आज़म देखना चाहती है। जी, वो खुद भी वज़ीर आज़म के उम्मीदवार है, लेकिन बात यह है कि उसके अपने चचा से किसी किस्म की कोई दावत नहीं है। अगर वो वज़ीर आज़म बनते हैं तो माशाल्लाह बने। आवाम जिसको पसंद करती है, जिसको आवाम वोट देती है, वो वज़ीर आज़म बने। अच्छा, हुक्मरान कैसा होना चाहिए? सर, हुक्मरान ऐसा होना चाहिए कि जो अपने जिससे आवाम खुश रहे। अच्छा, उसके अंदर क्या क्या खूबी होनी चाहिए? उसके अंदर सर जी जिस तरह महंगाई पे कंट्रोल होना चाहिए, और स्टूडेंट की पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, हर चीज़, और ज़्यादा आवाम को सहूलत मिले, और हर चीज़ पे यानी कि जिस तरह टैक्स लगे हुए हैं इतने ज़्यादा, तो ये इन चीज़ों को नीचे। मौजूदा हुक्मरान है जो इमरान खान साहब, आप उससे सहमत हैं? नहीं, बिल्कुल। आपको मालूम है कि अभी अभी हमने लाहौर मून मार्केट का विज़िट किया है, और आज हमने जाना है कि यहाँ पे लोग जो हैं काफ़ी हद तक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से बुरी तरह नाला है, बुरी तरह नाराज़ हैं। लोग अपने दुख का इजहार कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग साथ ही साथ अपना पॉजिटिव ओपिनियन मेक करने पर एग्री करते हैं। लोगों का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को 2 साल का वक्त देना चाहिए, ताकि उस तब्दीली के लिए जिस तब्दीली का वज़ीर आज़म साहब ने नारा लगाया था, और उस मदीना की रियासत का, जो मदीना की रियासत का पाकिस्तानियों को ख्वाब दिखलाया गया था, ताकि उस ख्वाब को वज़ीर आज़म पूरा कर गुजरें। 2 साल का वक्त इसलिए वज़ीर आज़म को देना चाहिए। तो नाजरीन, अभी आपने जाना है कि मून मार्केट लाहौर में लोगों का क्या कहना था। कुछ लोगों ने दुख का इजहार किया, कुछ लोगों ने खुशी का इजहार किया, और कुछ लोगों ने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को वेल एजुकेटेड पर्सन कहा और विजनरी पर्सन कहा, और कुछ लोगों ने बुरी तरह रिजेक्ट कर दिया। इस वक्त के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, बेदारी सब के लिए।